डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स में सोलेनेसी एक कैटेगरी है, ग्रुप है, जिसको हम फैमिली बोलते हैं, पोटैटो फैमिली, बिकॉज पोटैटो इज अ वेरी डोमिनेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन particular family or cluster of plants, right? Datura alba, this is the identical flowers we are taking in a description. First of all, habit means herbs, shrubs and trees, but datura is a herb form. इसका मतलब इसमें shrubs भी होती है और trees भी होती है, पर datura की रेस्पेक्ट में बात करें तो ये घास फूस की तरह उगने वाला प्लांट्स है। stem herbaceous और green, बेसिकली ये बहुत झाड़ी किस्म का है, छोटे साइज का है, तो झाड़ी टाइप का पतला दुबला सा होगा और ग्रीन कलर का होगा। इस तरह के स्टेम्स को कहते हैं हर्बेशियस ग्रीन। लीव्स आर अल्टरनेट्स इन फॉर्म इन अ लेफ्ट राइट इन अ फॉर्म, दे आर सिंपल, दे हैव अ सिंपल कंपोनेंट्स, मींस दे हैव अ सिंपल lamina, they have a one single leaf apex, they have a single midrib, such kind of the leaves called simple leaves, right? But some of plants have also pinnately, because incisions of lamina will reach to the midrib, right? Such kind of flower, such kind of leaves are also present in particular portion. So simple Datura alba की तो simple होती है. Reticular venation, because they are showing dicot leaves. They are dicot leaves, that's why they are having reticular venations. They have a cluster or they have a natural structure in their mid veins के अंदर होता है. Inflorescence, the arrangement of flowers in a shoot, arrangement of the flowers in a shoot or mother axis, that called inflorescence. Solitary, एक ब्रांच पर एक ही फ्लावर होता है, एक ब्रांच पर एक ही फ्लावर होता है, उसके बाद दूसरी ब्रांच निकलती है, उसमें दूसरा फ्लावर होगा. सॉलिटरी का मतलब सिंगल फ्लावर प्रेजेंट इन अ ब्रांच, राइट. साइमोस, देयर मदर एक्सिस शोइंग हियर लिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि मदर एक्सिस पर देखिए आप लास्ट में एक ही फ्लावर आ गया, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक गई, तो ये मदर एक्सिस है, उस मदर एक्सिस पर लिमिटेड ग्रोथ होती है, तो सच काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कॉल्ड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, where mother axis showing limited growth, right? Flower bisexual, because they having both stamen and carpel. Actinomorphic, because they having the radial symmetry here. Hypogynous, because the ovary के नीचे से सारे के सारे रोल्स में कैलिक्स ओवरी के नीचे से निकल रहा है, ठीक है. So calyx, corolla and androecium have the below position from the ovary. Such kind of the particular flower called hypogynous, and such kind of ovary called superior ovary. Pentamerous, because the all appendages which are present in a flower, they are present in multiplication of the five के multiplications में होते हैं. Datura alba में 5 calyx होते हैं, 5 corolla होते हैं, 5 androecium होते हैं. That's why this is called pentamerous flower. Calyx, made up of 5 sepals, सभी के सभी सेपल्स जुड़े हुए हैं. गैमोसेपलस, वेलवेट एस्टिवेशंस, बिकॉज दे हैविंग इन अ सराउंडिंग सर्कल फॉर्म बट विदाउट एनी टचिंग. वो उनके जितने भी सेपल्स होते हैं वो मौजूद है एक सर्किल में, बट वो टचिंग फॉर्म में नहीं है. दिस इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशंस. कोरोला, मेड अप ऑफ 5 पेटल्स, all petals are in a jointed in a cluster form, that's why it is called gamopetalous. Velvet estivation again. Androecium, 5 stamens are present. They 5 stamens मौजूद है, but they are polyadalphous. Polyadalphous का मतलब हो गया they are not jointed to each other. Stamens आपस में जुड़े हुए नहीं है, they are free. तो यहाँ पर free है, यहाँ पर मैं free भी लिख देता हूँ. free वाले को हम लिखते हैं polyadalphous. Adalphous. That's all. Epipetalous. Androecium किसके साथ जुड़ा हुआ है? हमने एक बात कही थी, अडेशन. अडेशन का मतलब क्या होता है? when appendages of different roots are fused, means यहां पर एंडोशियम कोरोला के साथ चिपक गया है, तो एंडोशियम कोरोला के साथ चिपक गया, तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटलस. और इस एपीपेटलस पोजीशन को हम कैसे शो करेंगे? दिस इज कोरोला, दिस इज एंडोशियम, और इसको हम इस तरह से चांद बना देंगे, मून बना देंगे C और A के ऊपर. That's called epipetalous. Now here stamens are fused. Stamen are fused or jointed with the petals, means corolla के साथ जुड़े हुए हैं. Gynoecium, 2 carpels present. So 2 carpels means ovary is divided in 2 different portions, that called carpels.
two carpels are present, so this is ovary called bicarpellary ovary. Syncarpus, both of the carpels are fused, they making a cohesion, that's why syncarpus, दोनों जुड़े हुए हैं. सुपीरियर ओवरी, बिकॉज ओवरी ऊपर की तरफ से, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स है वो नीचे की तरफ से निकल रहे हैं. दैट्स कॉल्ड सुपीरियर ओवरी एंड फ्लावर टाइप्स इज हाइपोगाइनस. राइट. ऑब्लिक्यू प्लासेंटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द स्टार पॉइंट ऑफ दिस फैमिली. स्टार पॉइंट ऑफ दिस फैमिली सोलेनेसी. सोलेनेसी हैव अ ऑब्लिक्यू प्लासेंटा. अब ऑब्लिक्यू प्लासेंटा कैसे होगा, देखिए. This is carpel. Carpel can be divided in two chambers. ये two chambers हो गए, 1 and 2, two carpels. So this is bicarpellary. Oblique placenta. Oblique placenta इस तरह से हो रहा है कि बीच में ये जो पार्टीशंस हैं वो पार्टीशन प्लासेंटा बना रहा है, और ये प्लासेंटा जो बीच वाला पोर्शन है, सेप्टम जिसको हम बोल रहे हैं, सेप्टा, वो फूल के मोटा हो जाता है. और ये मोटा हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं, कल मैंने बोला था दिस इज द एंटेरियर सरफेस, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. एंटेरियर पोस्टीरियर सरफेस यहां होती है, एंटेरियर सरफेस यहां पे होती है, पर एंटेरियर सरफेस यहां पे, पोस्टीरियर सरफेस यहां पे है. एंटेरियर सरफेस यहां पे है और पोस्टीरियर सरफेस यहां पे है. इस कंडीशन में तिरछा हो गया, ऑब्लिक्यू हो गया. राइट. दिस इज द लेटरल साइड, दिस इज द पोस्टीरियर साइड, दिस इज द एंटेरियर साइड, बट दिस प्लेसेंटा लोकेटेड बिटवीन द पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड बोथ ऑफ. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड oblique placenta. This is the edible portion of the fruit or edible part. जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स होते हैं, उसमें एडिबल पोर्शन ऑब्लिक्यू प्लासेंटा ही होता है. दैट इज द एडिबल पोर्शन, एडिबल पार्ट ऑफ द फ्लावर. एक्सियल प्लासेंटा, बिकॉज जब भी कोई बीच वाला हिस्सा फूला रहता है तो उसके ऊपर सारे के सारे हैं वो ओव्यूल्स आर सराउंडिंग हियर. ओव्यूल्स इस तरह से वहां पर फ्यूज हो जाते हैं. दैट्स कॉल्ड ओब्लिक्यू एंड सेवरल ओव्यूल्स आर present on the oblique placenta. This is called axial placenta. Fruits berry, because juicy placenta is a edible portion, that's why it is called berry. Seed endosperm, because the endosperm present in a mature seed, that called seed endosperm. Sorry. फ्लोरल डायग्राम की बात करें, फ्लोरल डायग्राम आपको नजर आ रहा है. दिस इज द ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट मौजूद है. दिस इज द कैलिक्स, फ्यूज्ड है, सारे के सारे कोरोला फ्यूज्ड हैं. यहां पर आप देखिए, दिस इज द एंडोशियम, दीज आर ऑल फ्री, एंड दिस इज द बाइलॉब्ड स्टिग्मा. मैंने पहले भी बोला था, यदि लॉब्ड बनी हो स्टिग्मा, दैट्स कॉल्ड बाइकार्पलरी. इस तरह से पूरा का पूरा एक बैल शेप बन चुका है. ये कैलिक्स सेपल्स वाला पोर्शन है, सेपल्स, और सेपल्स यहां पे क्या बना रही है, बैल शेप्ड, फ्यूज होने के बाद में. और इन सभी सेपल्स पे क्या, इन सभी, सॉरी सेपल्स नहीं, पेटल्स, पेटल्स. सो ऑल पेटल्स आर फ्यूज्ड टू मेकिंग अ बैल शेप्ड, घंटी जैसा शेप बना लेते हैं. राइट. ऑल स्टामेन्स आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स हियर. दिस इज द बाइलॉब्ड स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. बाइलॉब्ड स्टिग्मा रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज द ओवरी कॉल्ड बाइकार्पलरी ओवरी. राइट. अब फ्लोरल फॉर्मूला पे आ जाए. दिस इज कॉल्ड मदर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज बाइसेक्सुअल, दिस इज द कैलिक्स showing 5 sepals here, all are fused, that's why this is called gamosepalous. This is calyx, this is corolla. Corolla are made up of 5 petals, all petals are fused together, that's called gamopetalous. Endoecium made up of different 5 stamens, each and every stamens are free, that's why it is called polyadelphous. Here endoecium, all 5 endociems are fused with the layer of petals here. यानी कि एंड्रोशियम यहां पर कोरोला के साथ फ्यूज हुए हैं. इस कंडीशन को हम कह रहे हैं यहां पर एपीपेटलस. दिस इज कॉल्ड एपीपेटलस. This is called epipetalous. What is the epipetalous? This is epipetalous. This is called epipetalous. Epipetalous. Right. Gynoecium have a 2 carpellary. That's why it is called bicarpellary. Both of carpels are fused. That's why it is called syncarpus. And ovary is superior because this is hypogynous flowers. The examples of another plants from this same family, potato, botanical name is Solanum tuberosum.
Petunia, botanical name is a Petunia superior species. Brinjal, the botanical name is Solanum melonginum. Chili, the botanical name is Capsicum annum or Capsicum frutescens. This is the botanical name of Simla mirch, Simla chili, right? तो शिमला चिली की बात कर रहे हैं. कैप्सिकम एनम इज जो लंबी वाली चिली होती है उसकी बात है. बेलाडोना इज अ मेडिसिनल वैल्यूएबल प्लांट, एट्रोपा बेलाडोना. एंड टाबेको, जिसको तंबाकू कहते हैं, टाबेको बॉटनिकल नेम इज निकोटियाना टाबेकम. दिस इज द whole plants. We have completed now chapter number 5. Okay.